جس سے جگرے لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ پاکستانی دفاعی رویے، ارادے اور عمل نے پوری دنیا میں اپنی پیشہ ورانہ اور تخلیقی مہارت کی دھاک بٹھا رکھی ہے۔ پاکستان کی جدید ترین مؤثر اور عالمی شہرت یافتہ میزائل ٹیکنالوجی نے وہ مقام حاصل کر لیا ہے جسے پا لینے کی تمنا آج بھی بڑے بڑے اور نامور ممالک کے لیے محض ایک خواب اور خیال ہے۔ یہ صرف دعویٰ نہیں بلکہ ایک عالمگیر سچائی ہے کہ دنیا کے کئی اہم اور ترقی یافتہ ممالک اپنے ملکی دفاع کے لیے پاکستانی میزائل کو ناگزیر سمجھتے اور خریدنے میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں، جس کے باعث پاکستان کے درینہ دشمن ملک بھارت پر مسلسل سکوت طاری ہے۔ آج ہم اس خصوصی معلوماتی رپورٹ کے ذریعے پاکستان میں تیار کیے جانے والے جدید مختلف نوع چند بیلسٹک میزائلز کا مختصر جائزہ پیش کرتے ہیں اور ان وجوہات اور خصوصیات پر نظر ڈالتے ہیں جس کی بنا پر پاکستان کی شہرۂ آفاق میزائل ٹیکنالوجی کو بین الاقوامی سطح پر نہ صرف تسلیم کیا جاتا ہے بلکہ اس کے خوف سے دشمن کے ناپاک عزائم خس و خاشاک پتے پانی اور دل دہل جاتے ہیں۔ پاکستان کے ناقابل تسخیر بری، بحری اور فضائی نظام دفاع میں پاکستانی تحقیق اور جہد مسلسل سے تیار کیے گئے جدید ترین مختلف نوع بیلسٹک میزائلز ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میزائل در حقیقت راکٹ نما اسلحہ ہے جس کے انجن ٹھوس اور مائع گیس سے چلتے ہیں۔ طبیعتی اصولوں کے مطابق میزائل کا شمار کزیکا یعنی پروجیکٹائل میں کیا جاتا ہے۔ ابتدا میں چلتے وقت میزائل عمودی سفر کرتا ہے اور اپنی متعین بلندی پر پہنچ کر اپنا رخ نشان زد مقام کی طرف موڑ دیتا ہے اور چند ہی سیکنڈ میں اپنے ہدف پر قہر بن کر نازل ہوتا ہے اور بہت بڑی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ آج پاکستان کے پاس 60 کلومیٹر سے لے کر 2800 کلومیٹر تک مار کرنے والے کئی طرح کے بیلسٹک میزائل موجود ہیں۔ ان میزائل کی جدت اور صلاحیت کی بنا پر پاکستان کو اپنے درینہ دشمن بھارت پر واضح جنگی اور دفاعی برتری حاصل ہے۔ پاکستان کا نصر میزائل سولڈ فیول ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل ہے۔ یہ 1200 کلو گرام وزنی جبکہ 70 کلومیٹر فاصلے تک 400 کلو گرام وار ہیڈ یعنی روایتی اور ایٹم بم ہدف تک لے جا سکتا ہے۔ زمین سے زمین تک مار کرنے والا نصر میزائل آگے بڑھتی دشمن فوج، پلوں اور ڈویژن کو تباہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ بھارت کا پاکستان پر اچانک اور خوفناک حملے کی حکمت عملی جو بھارت کو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کہلاتی ہے، جسے بھارت نے کثیر سرمائے سے تیار کیا اور گھمنڈ کرتا تھا، نصر میزائل کے بننے سے یہ ڈاکٹرائن خاک میں مل گئی۔ زمین سے زمین پر مار کرنے والے پاکستانی ابدالی شارٹ رینج بیلسٹک میزائل کی دو اقسام ہیں۔ ابدالی میزائل کی ایک قسم 250 کلو گرام وار ہیڈ کے ساتھ 180 کلومیٹر فاصلے تک اپنے ہدف کو نشانہ بناتی ہے، جبکہ دوسری قسم کا ابدالی میزائل 450 کلو گرام جوہری اور روایتی وار ہیڈ کے ساتھ 200 کلومیٹر فاصلے تک اپنے ہدف کو درست نشانے کے ساتھ تباہ کرنے کی خاص صلاحیت رکھتا ہے۔ سپر سونک شارٹ رینج یعنی زمین سے زمین تک مار کرنے والا غزنوی شارٹ رینج بیلسٹک میزائل پاکستان کا ایک ایسا میزائل جو 300 کلومیٹر رینج کے ساتھ 700 کلو گرام روایتی اور ایٹمی دونوں طرح کے وار ہیڈ اپنے مقررہ ہدف تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طرح پاکستانی شاہین 1 میزائل 900 کلومیٹر، شاہین 2 1000 کلومیٹر اور شاہین 3 بیلسٹک میزائل 2800 کلومیٹر فاصلے تک ریڈار سے اوجھل ہونے کی خاصیت کے ساتھ برق رفتاری سے جدید اور خطرناک ترین ایٹمی وار ہیڈ کے ساتھ درست نشانے سے اپنے ہدف کو نیست و نابود کرتا ہے۔ پاکستان کے تیار کردہ گراؤنڈ لانچ اینٹی شپ اینڈ اٹیک کروز میزائل بابر 1 اور بابر 2 بالترتیب 450 سے 900 کلومیٹر فاصلے تک جدید خصوصیات کی بدولت خطرناک طور پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ بالخصوص بابر 2 جو امریکی ٹام ہاک کروز میزائل سے حیران کن مشابہت رکھتا ہے، جس کی تیاری اور تجربے کے بعد امریکن اور روسی انٹیلیجنس ادارے بھی ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو کر داد و تحسین دیے بغیر نہ رہ سکے۔ اسی طرح بابر 3 سب مرین لانچ اینٹی شپ اینڈ لینڈ اٹیک کروز میزائل کا حملہ انتہائی خوفناک نتائج برآمد کرتا ہے۔ 2016 میں بھارت نے اسرائیل کی مدد اور اربوں ڈالر کی لاگت سے اشون نامی میزائل شکن نظام کا تجربہ کیا، جس کا مقصد بھارتی تنصیبات اور مقامات کے گرد آئرن ڈوم یعنی
आहनी गुंबद बनाना था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने मुल्क की सलामती और दिफाई तकाजों के पेश नजर कसीरुल अहदाफ अबाबील मिसाइल निजाम की सूरत में दिया। अबाबील मिसाइल निजाम दरअसल एक वक्त में न सिर्फ 3 से 8 एटम बम ले जा सकता है, बल्कि रेडार में नजर न आने और मुख्तलिफ मकामात को आजादाना तौर पर फना करने की मोजिजाना खुसूसियात रखता है। इन सलाहियतों और खुसूसियात को मिसाइल साजी की इस्तिलाह में MIRV यानी मिसाइल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल और इंटेलिजेंट री एंट्री व्हीकल IRV कहा जाता है। ये सलाहियत अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया और फ्रांस के पास है और पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी का हामिल दुनिया का छठा मुल्क है। पाकिस्तान के अबाबील मिसाइल ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। पोर्टल इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग का कहना है कि पाकिस्तान के मिसाइल रेंज के एतबार से इंडिया पर बरतरी रखते हैं। इसी तरह इंडियन दिफाई उमूर के माहिर राहुल भोंसले ने BBC को इंटरव्यू देते हुए एतराफ किया है कि इंडिया के पास दिफा से मुताल्लिक टेक्नोलॉजी की कमी है। टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हमने देखा है टेक्नोलॉजी में तरक्की के बहुत से दावे किए जाते हैं, मगर जमीनी हकायक मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान के इन जदीद और खतरनाक मिसाइल की तख्लीक पाकिस्तानी तहकीकी इदारे नेस्कॉम की पुरखुलूस मेहनत का नतीजा है, जिसे देखकर दिल बेसाख्ता पुकार उठता है, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शाऊर, जां फिजा मेरा तखय्युल है तो शीरीं है सुखन। पाकिस्तान के किस मिसाइल ने भारत को चंद घंटों में खामोश करवा दिया और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को रिकॉर्ड 12 घंटों में कामयाब बना दिया। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स जो अपने किसी भी दुश्मन को चंद मिनटों में हिला कर रख सकते हैं। पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल्स की मुकम्मल रेंज की तफसीलात पहली बार मंजर आम पर। आखिर कौन कौन से मिसाइल पाकिस्तान के दिफा में मजबूत चट्टान की हैसियत रखते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नाजरीन, पाकिस्तान के पास हर रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। इसका मतलब जानते हैं आप कि अगर कोई भी मुल्क कहीं से भी पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान के पास उसका बेहतरीन जवाब हर वक्त तैयार है। अब मान लीजिए कि पाकिस्तान पर 70 किलोमीटर से लेकर 130 किलोमीटर के दरमियान में कहीं से भी हमला होता है तो इसका जवाब है पाकिस्तान का नसर मिसाइल। इस मिसाइल को खास शॉर्ट रेंज में एटमी हमले के लिए तैयार किया गया है, यानी वो मुमालिक जो पाकिस्तान की सरहद के साथ लगते हैं, जैसे भारत, अफगानिस्तान, और उनमें से अगर करीब तरीन देखा जाए तो वो है भारत। अगर पाकिस्तान नसर मिसाइल से भारत को मार करता है तो उसकी सूरत कुछ यूं होगी। अगर ये मिसाइल लाहौर से लॉन्च किया जाता है तो अमृतसर और पठानकोट रेड जोन में है, लेकिन अगर इसे सियालकोट से लॉन्च किया जाता है तो टारगेट होंगी गुरदासपुर और कठुआ, और अगर नसर मिसाइल को बहावल नगर से छोड़ा जाए तो दूसरी जानब भी एक और नगर रेडार में होगा, यानी कि श्री गंगानगर। ये तमाम के तमाम भारत के सरहदी इलाके हैं और नसर मिसाइल की पहुंच में है। नाजरीन, नसर मिसाइल भारत की कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटेजी का किलर है, क्योंकि नसर मिसाइल की असल खासियत डिटरनेस यानी दुश्मन के हमले को रोकना है। नतीजा ये है कि पाकिस्तान पर सरहदी इलाकों की जानिब से नसर मिसाइल के होते कभी भी कोई हमला करने की गलती नहीं कर सकता। अब अगर पाकिस्तान को 200 किलोमीटर की रेंज से टारगेट किया जाता है तो क्या होगा? तो फिर दुनिया देखेगी पाकिस्तान के अब्दाली मिसाइल के जलवे। जी नाजरीन, अब्दाली भी पाकिस्तान का एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो 180 से लेकर 200 किलोमीटर तक बेहतरीन मार कर सकता है। अब्दाली मिसाइल के बारे में मशहूर है कि इसका निशाना कभी भी चूकता नहीं, और इसकी वजह है इसके अंदर मौजूद इनर टेल गाइडेंस सिस्टम, जो हदफ पर एकदम दुरुस्त निशाना लगाने में मदद देता है। दूसरा यूनिक पॉइंट है इसकी क्विक लॉन्च कैपेबिलिटी, यानी अब्दाली मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर की मदद से फौरन लॉन्च किया जा सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान इस मिसाइल को फर्स्ट रिस्पॉन्स वेपन के तौर पर इस्तेमाल करता है, जिससे दुश्मन के हाथ पांव शुरू में ही फूल जाते हैं। अब्दाली मिसाइल का तीसरा यूनिक पॉइंट है इसकी डुअल कैपेबिलिटी, यानी ये मिसाइल कन्वेंशनल भी और न्यूक्लियर दोनों तरह के वॉरहेड्स को ले जाने की ताकत रखता है। कोई मिसाइल दिमाग पर हमला कर सकता है। जी हाँ, पाकिस्तान का ये अब्दाली मिसाइल जो कि दुश्मन को नफसियाती तौर पर ढेर कर देता है।
क्योंकि इसकी मौजूदगी दुश्मन की फौजी मुहिम जुई के लिए एक बड़ा खतरा साबित होती है। अब मान लीजिए कि पाकिस्तान के शहर लाहौर या फिर सियालकोट से अब्दाली मिसाइल को भारत की जानिब लॉन्च किया जाए तो पठानकोट, जालंधर और अमृतसर जैसे बड़े 3 शहर इसकी रेंज में होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान पर दुश्मन हमेशा रात में ही हमला करता है और इसी वजह से पाकिस्तान को बनाना पड़ा गजनवी। इस ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल का नाम मशहूर फातेह महमूद गजनवी के नाम पर रखा गया है, जिसने कई बार हिंदुस्तान पर हमले किए थे और आज भी हिंदुस्तान पर हमले के लिए ये सबसे तेज और खतरनाक मिसाइल है। ये 200 से 300 किलोमीटर की रेंज तक आराम से मार कर सकता है। अगर गजनवी को हिंदुस्तानी सरजमीन की तरफ आज भी भेजा जाए तो अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, श्री गंगानगर, बीकानेर, पठानकोट और जम्मू तक को फतह करके छोड़ेगा। इस मिसाइल का पहला तजुर्बा सन 2020 और 2021 में रात के वक्त ही किया गया था, जिसका मकसद दुश्मन को ये पैगाम देना था कि दिन या रात पाकिस्तान दुश्मन का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। नाजरीन, पाकिस्तान की एटमी ताकत की असली गेम शुरू होती है शाहीन 1 से। मीडियम रेंज की सलाहियत के साथ पाकिस्तान के न्यूक्लियर डिटरनेंस प्रोग्राम का बुनियादी सुतून, रेंज 750 किलोमीटर। शाहीन 1 की पहली खासियत है ठोस ईंधन, जो इसे न सिर्फ फौरी लॉन्च के काबिल बनाता है बल्कि कम वक्त में हदफ पर हमला भी मुमकिन बनाता है। शाहीन 1 की दूसरी खासियत है इसमें मौजूद इनर टेल नेविगेशन सिस्टम और जीपीएस बेस्ड करेक्शन। इसकी स्ट्राइक हमसाया मुल्क में एक अच्छी खासी खलबली पैदा कर सकती है, क्योंकि जैसे ही शाहीन 1 का हमला हुआ तो भारत के अंदर वाक़े स्ट्रेटेजिक कमांडर सेंटर्स, एयर बेसेस, न्यूक्लियर प्लांट्स और बड़े बड़े शहर इसकी लपेट में होंगे। नाजरीन, शाहीन 1 का अगला वर्जन A1 इससे भी ज्यादा भयानक है, जिसका तजुर्बा सन 2021 में किया गया, मगर इसकी तफसीलात को खुफिया रखा गया है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इसका निजाम पोस्ट सेपरेशन पर मुश्तमिल हो सकता है, यानी वॉर हेड हदफ के करीब पहुंचकर सिमत बदल जाना, जो कि दुश्मन के दिफाई निजाम के लिए खतरनाक तरीन चाल है। शाहीन 1 को अगर भारत पर गिराया जाए तो दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ और नागपुर इसका निशाना होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल रेंज में अगला नाम है गौरी मिसाइल का, जो पाकिस्तान का लंबे फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज तकरीबन 1300 किलोमीटर। इस मिसाइल के पाकिस्तान के पास 2 वर्जन मौजूद हैं, गौरी 1 और गौरी 2। गौरी 2 की रेंज है तकरीबन 1800 किलोमीटर। नाजरीन, गौरी पाकिस्तान का पहला MRB यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी खासियत है कि ये 1000 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर वॉर हेड्स ले जा सकता है। ये इस कदर खतरनाक है कि इसे हमेशा दुश्मन को आखिरी वार्निंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे ट्रकों और मोबाइल लॉन्चर्स पर खुफिया तरीके से ले जाया जा सकता है, जिससे दुश्मन के लिए इसकी मौजूदगी का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। 1998 में गौरी के तजुर्बे ने भारत में ऐसी हलचल मचाई कि भारत को फौरी तौर पर अपने पृथ्वी और अग्नि मिसाइल प्रोग्राम्स को तेज करना पड़ा। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि अकेला गौरी हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद और लखनऊ के लिए काफी है। अब बारी है नाजरीन पाकिस्तान के सबसे ज्यादा फासले तक मार करने वाले मिसाइल शाहीन 2 की, जो पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल्स में एक डॉन की हैसियत रखता है। रेंज 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर तक, यानी भारत के सभी बड़े शहर इसका हदफ हो सकते हैं। इसीलिए सेकेंड स्ट्राइक ऑप्शन में रखा गया है, यानी हमले का तगड़ा जवाब। शाहीन 2 दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स BMDS जैसे भारत के पृथ्वी एयर डिफेंस और अग्नि वेयर को चकमा देने के लिए एक माहिर मिसाइल है। नाजरीन, अब जरा दिल थाम लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के अगले बैलिस्टिक मिसाइल से बड़े बड़े मुल्क अपने दिल थाम लेते हैं। इसका नाम है शाहीन 3। शाहीन 3 की रेंज है 2750 किलोमीटर, यानी कि अगर इसका रुख भारत की तरफ मोड़ा जाए तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर मौजूद
अंडमान निकोबार के दूर दराज जजायर तक इसकी रसाई मुमकिन है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नाजरीन, शाहीन 3 मुल्क पाकिस्तान के दिफा के लिए इसराइल और मशरिक़ वस्ता के ममालिक तक भी पहुंच सकता है। नाजरीन, पाकिस्तान का सबसे ताकतवर एटमी मिसाइल है अबाबील। पाकिस्तान का जदीद तरीन और टेक्नोलॉजी के लिहाज से सबसे इनकलाबी बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2200 किलोमीटर। मगर इसकी शोहरत इसकी रेंज नहीं बल्कि इसकी MRIV सलाहियत है। इसी मिसाइल की बदौलत पाकिस्तान वो पहला इस्लामी मुल्क है जिसके पास MIRV सलाहियत मौजूद है। नाजरीन, ये MIRV क्या है तो अब जरा गौर से सुनिए। एक MIRV मिसाइल किसी भी मुल्क में अलग अलग कई वॉर हेड्स गिरा सकता है और इसी वजह से इसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर भारत की मिसाल ली जाए तो पाकिस्तान का एक अबाबील दिल्ली, जोधपुर और मुंबई को एक साथ अलग अलग वॉर हेड से निशाना बना सकता है। अबाबील को भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 AAD PAD को नाकाम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। MIRV वॉर हेड्स दुश्मन के रेडार को ओवरवेल्म कर देते हैं क्योंकि हर वॉर हेड अलग अलग ट्रेजेक्टरी पर होता है। अबाबील के हमले के आगे दुश्मन के BMD सिस्टम भी फेल हो जाता है। नाजरीन, ये थी पाकिस्तान के तमाम बैलिस्टिक मिसाइल पर हासिल शुदा वो मालूमात जो मंजर आम पर मिलती है, मगर वो तमाम मालूमात जिन्हें खुफिया रखा गया है वो कभी मंजर आम पर नहीं आ सकती। और यही पाकिस्तान की असल पावर है जिससे भारत क्या अमेरिका तक संभल कर चलता है। मगर नाजरीन, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि अफवाज पाकिस्तान ने इनमें से किसी भी मिसाइल का इस्तेमाल भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में नहीं दिया। तो फिर वो कौन सा मिसाइल है जिसने भारत को चंद घंटों में खामोश करवा दिया? वो मिसाइल है नाजरीन फतह 1 और फतह 2, जिसने महज 12 घंटों के अंदर पाकिस्तान को फतह दिलवाई और दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। नाजरीन, फतह 1 पाकिस्तान का एक कलील फासले तक मार करने वाला रॉकेट सिस्टम है जो मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS की तर्ज पर बनाया गया है। ये पाकिस्तान की दिफाई सनत की एक अहम कामयाबी है क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर मकामी सतह पर बनाया गया है। इसकी रेंज तकरीबन 140 किलोमीटर तक है, जिसकी बदौलत ये सरहद पार दुश्मन के स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाने की बेहतरीन सलाहियत रखता है। ये रॉकेट GPS गाइडेड है, यानी ये सैटेलाइट के जरिए हदफ की दुरुस्त लोकेशन हासिल करता और एकदम दुरुस्त निशाना बनाता है। इसकी ये खूबी इसे आम गैर गाइडेड रॉकेट से कई गुना मौसर बनाती है। ये रिवायती वॉरहेड से लेस है, यानी ये एटमी नहीं बल्कि धमाका खेज मवाद इस्तेमाल करता है। ये रॉकेट दुश्मन की तंसीबात, कमांड सेंटर्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाने के लिए एक मिसाली रॉकेट है। मगर ये रॉकेट अकेला फाते नहीं था, इसके साथ था फतह 2 जो ताकत और रेंज में फतह 1 से भी बहुत आगे है। ये एक गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम GMLRS है जिसका मकसद दुश्मन के अंदरूनी दिफाई अहदाफ को निशाना बनाना है। रेंज तकरीबन 210 किलोमीटर, GPS और INS सिस्टम से लेस है। एंटी जैमिंग सलाहियत मौजूद है, यानी ये दुश्मन की जानिब से किए गए GPS जैमिंग हमलों से बचने की सलाहियत रखता है। इस रॉकेट को MLRS लॉन्चर से चंद ही सेकंड्स में फायर किया जा सकता है, जो इसे दुश्मन के रेडार से छुपने और फौरी हमले की सलाहियत देता है। इसे शूट एंड स्कूट हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। नाजरीन, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पाकिस्तान अब फतह 3 और फतह 4 पर काम कर रहा है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। इसके अलावा पाकिस्तान के सबसे ताकतवर मिसाइल अबाबील की अपग्रेडेशन पर भी तेजी के साथ काम हो रहा है, जिसकी तफसीलात आपके साथ बहुत जल्द शेयर की जाएंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।